Please welcome our Kumalui Ajay Thaikai, Bini Pali Benai Motai, Motomba, Shahari, Hasamari, Nikamu, Munushumai, Hawa Himna, Nishane Tomaba, Kerema Kumi, Mumpi Pano. His Royal Highness, the Royal Sign of the Glorious Manikya Dynasty, Maharaja and Bubabra, Brother Vikram Manikya. Please welcome our guests with a big round of applause. Our Honorable His Royal Highness, the Royal Sign of the Glorious Manikya Dynasty, Maharaja, Chairman, Administrative Advisory Reforms Committee, TTADC. Please give a big round of applause. Shri Shuhel Dev Verma, Shri Uma Shankar Dev Verma, Shri Devajit Tripura, Member of District Council, Shri Robindra Dev Verma, Member of District Council, Shri C.K. Jamatia, CEO, TTADC. Our special guest, Mr. Dr. John V. S., Senior Advisor, Special Projects AHEL. Dr. Karan Thakur, Apollo Hospitals Enterprise Limited. I take this opportunity to welcome Shri Pranab Sharkar, Secretary, Agartala Council, to kindly Hasamani Yapai Boriwood, Bini Pohorbai, Bini Kutungbai, Kao Kaporma Opai. The very essence of life on earth's light. Through its warmth, we embrace the Almighty and invoke His blessings before we embark on any new venture in our lives. May I and honor esteemed guests on the dais to kindly inaugurate today's inaugural program by lighting the ceremonial lamp. I request our Thank you, sir. I now downtrodden and inaccessible. We would like to take this opportunity, sir, to kindly felicitate our Bupagra, Pradodhik. I request Dr. John. Thank you. Jotana Khunumkha, সবাইকে নমস্কার, গুড মর্নিং টু এভরিবডি। তিনিনি যে পান্দা
inauguration of Sast Bahan, that is Sakham Malkhung. Tripura Tribal Areas Autonomous District Council by Apollo Hospital Enterprise Limited by Khlai Jugaljak Jatini inauguration program O program ni President of the function Sri Kamal Koloi, Honorable Executive Member Health etc. departments. The inaugurator His Highness Sri Pradut Bikram Kishore Devarma, Chairman AARC TTADC. Chief guest Sri Purna Chandra Jamatia, Honorable Chief Executive Member Tei Araniwa Manjaphaikya, Honorable Executive Member Sri Suhel Devarma, Honorable MDCs, Honorable Chairman West Zonal Development Committee, and present Sri Mr. Prem Anand, Chief Business Officer, Telemedicine, Apollo Hospitals, Dr. Jannavi Madam, and Dr. Karan Thakur and his team members. They Honorable Manjaphaikya senior citizens, ladies and gentlemen, and press media friends. First of all, on behalf of ADC administration, I would like to extend warm welcome to all the participants in this function. Tinini je Sakham Malkhung Aranego ADC by Apollo Hospitals Limited Jornego Dailayui Malkhung Sakham Malkhung Arnego Sang Saranani Panda O Pandago Joptana Arnego Faika Hamjanago Sung Tabok. I would like to say that we are running vibrant and dynamic ADC administration, and the needs of the people living in ADC areas particularly and all other citizens of Tripura is our concern. Khumulung থেকে আরম্ভ খাইয়ে ইয়াং সাবরুম মাগরুম পর্যন্ত বা ইয়াং নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট নিজে ওয়াংমুন পর্যন্ত যে চিনি বরক তংনাই রক বড় নিজে রিকোয়ারমেন্টস বড় নিজে নাংমানি মানৈ বনন চং এডিসিনি তরফ থেকে ফুলফিল খাইনানি বাঙै চং সাকথারি দङ অনেক সাকথার মানে বিসিङ अम तिनी निजा Sakham Malkhung inauguration claimani amake just kabangman bisingo kaisa je o Sakham Malkhung, that is mobile medical unit ni through chung health care jekhane remote area wa unserved areas, remote areas, unreached areas, areas chung sogoi health care facilities no citizens ni thani go chung sogrona ni bangi chung chesta khlai dongo process ta khaimani o tini ni je inauguration ne panda aro nira jotto 5 manda khani ni bangi nira jotto no ADC administration ne taraf theke nira no hambai te or no phai kaham janogo te oranigo Malkhung tongnai is a medical unit, mobile medical unit থাকছে একজন designated doctor, technical persons এবং একজন গ্রুপ ডি এবং ড্রাইভার চারজনের যে টিম থাকছে ও চারজনের যে টিম বড় প্রত্যেক জায়গা as per the suggestions of the public, as per the requirements जों movement plan खालायनाय movement plan खालायै प्रत्येक जायगायाव आबा थांनाय आरो निगा ECG facility तंनाय
eye testing facilities tongnai, cancer need testing facility tongnai, abo arani thekebo uja mobile medical unit je jaga phana thangthang aro theka direct Hyderabad, Chennai o connection khlai bar consultation khlai treatment ni bangai bar ব্যবস্থা khlainai a কয়েকটা সাগৈ হাই হাই নিরহরণে কবাংমা তাখক বুখর যে মানজা ফাইকা যে গ্যাস স্ট্রোক ফাই মানজা ফাইকা নিরক যত্ন হাই হাই এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফ থেকে অর্ণব ফাইকা হাম জানগই খুনুম মুই জানগই আনি কারণ মুথাক্কা হামবাই খুনুম খা যত্ন To the Honorable Maharaja, without him today this wouldn't have happened. So thank you Maharaj ji. Tini niyo dino ang Maharaj chini Maharaj no khabe khukbe khapur mate khaka ham ya pharo tini niyo pandano chini bagai tui phaima bagai osaga. I also take the opportunity to thank and extend our best wishes, gratitude to the Honorable CEM, Deputy CEM, the CEO, the executive members of the TTAADC and other senior officials and all these wonderful people who have travelled from far and wide from interior villages of Tripura. Thank you for coming today. Tini niyo dino ang joto no tini phai manjak phai joto narowai okor ragno te oro phai joto manjak phai luko ragno bang khabe khukbe hambai te khaka ham ya pharo. So let me start by telling you few things. 2 weeks back, I'm very sure all of you would remember that we inaugurated the tele-emergency center few weeks back. And few weeks back, about 60-year-old lady had visited Kumlung Emergency Center with 170 plus heartbeat per minute. And on a normal circumstances, she would have to be taken to Agartala to save her life or to even bring down the heart rate to stabilize it. This particular health condition could have taken anyway. But we are very happy and proud and humble to tell you this, that 60-year-old lady was saved because of the emergency center here, and she was able to access the best of best experienced emergency doctors using technology. And in a short span of time, we at least have 15 to 16 cases of emergency stabilization, including an 104-year-old very, very senior geriatric person from your community, as well as over 400 specialty teleconsultation. By far, I have spent 18 years of my working life in community health. I have never seen overwhelming services taken in this fashion in community health. Hadi banis kang norok saimang khana o jaga chini apro tele emergency wo kasha 60 bosoni rogi phemani bini heart rate apro 170 ka phemani bo apon ya bolo jodi tini emergency kering ma dino hunkai agor tolbon tangna na khamon initial stabilization ni bage shimi pano kintu tini o jaga chini bubakrani tei oro phaimani apro tele emergency ni bage chengar doctor be connect khaya jaga bono cheng stabilize khai bono cheng panchi ri mangkha abo tei cheng onek khak abo khawa khakchang ma tei nyongna kokno tini chana musongo আপনি ইয়া বলব চিনিও টেলি এমার্জেন্সি ও প্রথমবার 400টা সুপার স্পেশালিটি কনসালটেশন অংখা আবো এর আগে কোন জায়গা ইয়া কমসে কবাং খাই অরনি লোকরকনি যতন তৈ চুবা মাতৈ তৈ বংনি চুবা মাতৈ তিনি চেঙ্গ জায়গা কাম খাই দং What we did as Apollo, bringing expert doctors using technology and all that, is nothing great. Our doctors do this every day across 74 hospitals plus. But what is most important is, how did we reach here? I should honestly place it on record, not because TAADC officials, the Maharaj and all of them brought me here. Honestly, this wouldn't have been possible in such a short notice if not for the push His Excellency Maharaj has done. He has literally pushed everything possible in the books to ensure that nowhere we would have done this project in 45-50 days. The amount of professional international knowledge Maharaj ji brings, he has seen the world.
He has seen abroad, he has seen India, he has seen the best of everything. But for someone to see and bring it for his people is something very noble. We are humbled that we have an opportunity to work with this great man. Thank you, Maharaj ji. नोडक और जे वांसुक मानी जे अति हेल्थ केयर काशा अब किंतु आगे नि सिमनो तंगो सिस्टेम जिम तंग फाइ अनेक बसरंका किंतु चिनि और हेल्थ केयर न जों तुइमाया तिनि जों अ जागा फाइ नंग बसं बासा फाइमांखा शुधु मात्र बरक मासन बागे सिमनो चिन बोबाग्रा तै चिन टीटीएडीसी नि बाकी जतो मेंबर नि बागे सिमेनो महाराजा चिन महाराजा अनेक जागा गुड़ी फाइजा नुक फाइजा बनुगुइ फाइया को ओइ तिनि चिनी बागै अ हावो अ खुमुलंगो अम तुमानि बागै जों बनो बलाय बलाय खन्य खापुर माताय हामया फारो बबिनि अ तिनि न चेष्टा ओ कुनु लामा जसा पाथर हिंदी लामा जसा बुसु बुलंग हनै जतन सबाई जतन पारखाय ब चिन बागै तिन खुमुलंगो टीटीडीसी ओ एपोलो हेल्थ केयर न तुइ जों नंनि लोकरंनि बागै सामुं तांना बागै ब जों न सम्भव खायदिखा So it is not going to stop here. In less than few weeks, the next project is already on the way. You are now traveling to come to Kumlung to take your services. Now Maharaj ji wants to take the services to the doorstep of every single person who is sitting here. And this is not an ordinary vehicle. I can assure you, in India, if not the only one or very few like this, this is going to bring you all spectrum of healthcare. Just not any doctor consultation, women's health, children's health, geriatric, senior people's health, vision, anemia, you name it, this vehicle is going to carry everything, and it will also allow you to talk to expert specialists. This kind of facility, I can assure you, not even the most developed states have it. And this is just the beginning. Maharaj ji wants to bring a blood bank. There is going to be giving away of free spectacles to people, and overall, when you educate a woman, you educate a family. When you educate a family, you educate a society. Maharaj's approach is like that. He wants to bring wellness into all of your people. If you are all good, then everybody else is fine. This is what I have understood in the last few months. I have interacted with the TADDC officials, the Honorable CEM, Jamatia Saab, and all of them. They are all in one unity, wants to do this, and we are going to be mandated to do this for you all. ताबुंने चिन सुरु खायमानि म अर सिमि जों बाथागिया अम सुरु सिखौ ताबु जों खाय थानाय ताबु जायतगै थानाय जों तिनि जे अर साखा मालखौ फायमानि अ मालखौ रक्त वानसुकदि हानि डॉक्टर सिमि फायनाय जानाय नायफैजाक मानाय नरक अर तंनाय नंनि ब्रै रंनि साखा मेनायनाय जे रंनि साखा मेनायनाय अक्रा जाग्रं साखा मेनायनाय नंनि अजग थै कमङै आबनि बागै ब साखा मेनाय जोंनाय अर नर फेसिलिटी माननाय अमति हाय साखा मालखौ नों भारतनि अनेक राज्य चिनि अब हास्ते हापाराव नों थाङै नायखाय अनेक हापतन नों मानिगलाक थाङै चिनि अमहाय मडल कासे साखा मालखौ खूब कम राज्य नों माखौ ताबु जरातै नों ताबु अर सिमि जों बाथा गया ताबु बसखां थानाय जों नंनि सपोर्ट बाय नंनि आबो बाय जों ताबु बसखां हिम आगो गइतलांनाय बन ताबु चिनि बोबाग्रा ताबु प्लानिंग खायखया ताबु जातिय खाजे अर ब्लाड बेंक गासस बहाबो खायनाय हिनै जतनि हामक्रायनि बागै अमो सपोर्ट सुदु बुबाग्रा सिमिरि माबाय अंगिया चिनि जतो जागा फाइ माजा फाइ चिन नारवाय सं चिनि ऑनरेबल ईएम मेंबर सं बडक बजतन बंनि या फलोगैसि तिनि जों जागा फाइ नंनि बागै जों मनो तुइ फाइमानो. So with the note that we have a lot of responsibility which we have taken on behalf of this administration structure headed by His Honorable Excellency, we assure you that nobody should be refused with health care. Any life which could be saved will be saved, and wellness should be retained for all. From a pain mitigating society, we want you to become a proactive, health seeking and a healthy society. And thank you for giving us this opportunity, and we will do our job well. Thank you very much. Ora simi जों पाया ora simi जों चाइदक मानसिनि पाइमं पाया जों ताबो हिमै थानाय जोंनि महाराजानि हेल्प दै नंग जतनि हेल्प दै नरमनो जों गासा अब असुस्थ समाज থেকে সুস্থ সমাজ हेल्दी समाज खायतलांनाय नंगनो जेरै खनाय सिमिया अक्रा चाकरा नबो जों सुस्थ खायतलांनाय जेमन गासा लिडिंग एग्जांपल दङ चिन बस थानाय हादिवनो 104 बोसोरनि बरं गोनां जों मासा चिनि एपोलो इमारजेन्सी अफ फाइनो ट्रिटमेन्ट नङै बताबं नगो थाङै सुस्थं थांखा जों नंनो जों अबसिमि सानो जे नंनि बो सपोर्ट दिदि जोंनो जों बन दं थानाय चिन महाराजानि स्वप्ननो जों पुरा खायतलांनाय.
थैंक यू ऑनरेबल। और उससे ज़्यादा हिज हाइनेस का, जिन्होंने हमें एक और मौका दिया आज यहाँ उपस्थित होने का, और आज आप सबके सामने हम एक और हेल्थ सोल्यूशन लेके आए हैं जिससे कि हमें लगता है जिसका जो इफ़ेक्ट होगा वो आप सबकी ज़िंदगी में बहुत एक अहम पहलू होगा। आज हम एक मोबाइल वैन को इनॉग्रेट कर रहे हैं। इस मोबाइल वैन के अंदर ऐसी सारी तकनीकें हैं जिससे कि हम आपकी टेस्टिंग कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि आपकी कैंसर होने की आशंका है कि नहीं, हम लेडीज़ का स्क्रीनिंग कर सकते हैं ये देखने के लिए कि उनकी स्वास्थ्य अभी किस हालत में है, हम बच्चों का जांच कर सकते हैं, आई की टेस्टिंग कर सकते हैं, और ये सारा कुछ एक वैन के ज़रिए होगा। जब हमारे पास महाराज जी ने हमें डायरेक्शन दिया था कि आप क्या क्या लेके आ सकते हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य के लिए आप हमारे लोगों के लिए कर सकते हैं, तो हमने उनको एक दो चीज़ें बताई जो हम करना चाहते हैं। और हर बार जब हमने बोला कि हम ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, महाराज जी ने हमसे बोला और क्या कर सकते हैं आप, और क्या, अगला क्या। तो आज हमने एक ये मिशन अपना यहाँ कंप्लीट किया है जो हम आप लोगों को आज गिफ्ट कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। लेकिन हम अब इसके आगे, जैसे प्रेमानंद साहब ने आपको बताया, हम इस रीजन का सबसे आधुनिक ब्लड बैंक भी शुरू करने जा रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में आप इस ब्लड बैंक को अपने इस सेंटर में यहाँ देखेंगे। इस ब्लड बैंक के ज़रिए एक आप लोगों को अगर कभी भी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, कभी किसी सर्जरी के बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, किसी माँ को जिसने अभी बच्चे को अपना जन्म दिया है उसके बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब यहीं होगा। इस सर्विस के ज़रिए हम HIV की टेस्टिंग भी करेंगे, और बहुत सारे ऐसे जो वायरस होते हैं जो खून में पाए जाते हैं उसकी टेस्टिंग करेंगे, जिससे कि जब ये खून किसी को चढ़े तो वो नुकसान की जगह फ़ायदा करे। ये ऐसी सर्विस आपके यहाँ अभी यहाँ मुहैया नहीं है, और जब ये आ जाएगी इससे बहुत सारे लोगों को अपना हेल्थ स्टेटस भी पता चल जाएगा कि जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें से क्या निकला। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आज के युवाओं के लिए हम इस ब्लड बैंक के ज़रिए एक मौका देंगे जिससे कि आप भी आगे आएँ, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें, ब्लड डोनर बने, जिससे कि कोई भी आदमी, लेडी या आदमी या बच्चा, खून की कमी की वजह से अपनी जान जोखिम में ना डाले। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है नियत और नियति। अगर जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी नियत ठीक हो, जो चाहता है कुछ सोसाइटी के लिए करने के लिए, वो कोई ना कोई रास्ता हमेशा निकालता है। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी नियत और नियति के थ्रू कि हम आप सब के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज जो वर्ल्ड क्लास हैं आपको मुहैया कराई जाएं। प्रेमानंद साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला जो हमने टेलीमेडिसिन सेंटर खोला था, आप सब ने शायद उसको देखा होगा, कुछ ने यूज़ किया होगा। उसके खुलने के बाद हमारे अपोलो के डॉक्टर आपके पास यहाँ एक टेलीविज़न स्क्रीन पे हैं, पर महाराज ने बोला अगला क्या। अब इस वैन के ज़रिए हम आपको ये जो हेल्थ सर्विस है आपके घर, आपके द्वार में इसको हम मुहैया कराएंगे। और अब ब्लड बैंक के ज़रिए और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अभी प्लान में है उसके ज़रिए एक हेल्दी सोसाइटी बनाने का हम एक नींव रखने जा रहे हैं। हम चाहेंगे इन सारी सर्विसेज को देने के साथ साथ एक हम हेल्थ मैसेज भी आपको देना चाहेंगे। महाराज जी ने हमें बताया कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा आज ड्रग्स या तंबाकू या उस टाइप के बहुत सारे जो पदार्थ हैं उनका शोषण करते हैं, और अल्कोहल का शोषण है, और इन सब चीज़ों से जो यूथ है उसको प्रोडक्टिव होने की जगह वो अपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स है उसको गंवा रहा है। हमारी आप सब से अपील है कि आप लोग साथ मिलके एकजुट होके ये एक मुहिम छेड़ें कि ड्रग्स, तंबाकू, अल्कोहल ऐसी चीज़ों का जो अब्यूज़ हो रहा है उसको हम किसी तरह बंद करें, अपनी रेगुलर टेस्टिंग कराएं,
और जितनी सर्विसेज हम यहाँ आपको अवेलेबल करा रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अगर आप लोग स्वस्थ रहेंगे पूरा देश स्वस्थ रहेगा और हम ऊंचाइयों और बुलंदियों की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। इन कुछ शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से महाराज जी का, पूरे TTAADC के मेंबर्स का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमें एक और मौका दिया आपके साथ जुड़ने का, आपके साथ पार्टनरशिप करने का, और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते। मलकलय तेबो सेने इनाग्रेटर पांडानो संसायरनाय सेने बोबाग्रा बनो आने खुलमाया फारो तेबो फाइमानजाक फाइजाक सेने एपोलोनि अंगै प्रेम आनंद जी, डॉक्टर करण जी, डॉक्टर जानवी जी बरना जतन आने पाइप्लेया हमजाक मा ते खुलमाया फारो तेबो फाइसक फाइजाक सेने ऑनरेबल EM सोहेल देबबर्मा, MDC उमाशंकर देबबर्मा, MDC रविंद्र देबबर्मा, MDC देबजित त्रिपुरा, MDC गणेश देबबर्मा, तेबो MDC रविंद्र देबबर्मा, तेबो फाइमानजाक फाइनाय चेने मेयर चेने बसकांग आसक जाक बनो जतन आने पाइप्ले हमजाक मा दै खुलमाया फारो तिनि आने बसकांग आसक जाक जत ताखक दै बुखक सनो आने पाइप्ले हमजाक मा दै खुलमाया फारो तिनि ने ओ साल का हमजराव किसी सा कक सावनो जोंनि डॉक्टर रक साइथांखा जों पहिलाव टेलिमेडिसिन टेलि इमारजेंसी खायखा अमबाय जोंनि लोकरक ब्लाय बेनिफिट माखा टेलि मेडिसिन सालब्रोंनो 20 जना सिगां एपॉइंटमेंट नावै जतनो ट्रिटमेंट खायजांनानि बागै टेस्टिं खायजांनानि बागै बरक लाइन रलायजाक गोबांमा नायजाकनि हफानो जेहेतु लिमिटेड नायजाकमानि बागै बरकनि डिमांड तेबो बाराय दं इंगे उसको बुमाय थांखा जोंनि डॉक्टर छाय थांखा दिनै बुरा बुरि बयस दंनाय रक रां गैयै रक फाइ और जागाव फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट खायजावै थांबायखा बेलाय बेनिफिट माय थांखा इवेन आनि नावनि फेमिलिबो दङ आ जागाव आने आमानो नायरखा आने बायनो तबै नायरखा स्किन नि डिजीज अनेक दिनै प्रॉब्लम ngoi tongmani tabo kisa benefit ngoi tongha tabo recently नायजाक मानि बागै इंगे जों अमो हाय अरो चिने बुबाग्रानि नेतृत्वे तै एपोलो सं अरो फाया हंखा के अमो हाय गोबांमा गामियाम चाइनि लोकराव ओ बेनिफिट नायमाया ओंखामो दिनै जों अरो चिने खेरेंबार हॉस्पिटल खमलंग बबो मागनां केसि अमो हाय उसको मावै थांखा इंगे जों बसो अपॉर्चुनिटी माय तंखा चिनिति प्रासा लोकरक विशेष के रां पैसा करै र दिनै चिने मोबाइल हॉस्पिटल मोबाइल बैंड हॉस्पिटल डॉक्टर रक साइड थांखा तमा बेनिफिट मानाय गामियाम चाइयो शिड्यूल खायजाके थांनाय आ जागा प्रोग्राम होनाय आ जागा डॉक्टर रक थांनाय आप्रो जों लोकरकनो बेनिफिट नानानि बागै सालायनानै चिनि दायित्व दं कारण गोबांमा लोकरक साइमाया जे चिनि खेरेंबारो ताबो टेलिमेडिसिन टेलि इमारजेंसी ओं दंमानि बरक बाक्सा सामायाबो दं इंगे बरनोबो जों मास सिर'नि दायित्व चिनि दिनै जे अरो प्रोग्राम दंनाय रक तेबो दिनै जे अरनि मोबाइल हॉस्पिटल गामि आमसायो थांख्रो प्रोग्राम शिड्यूल खायजाक बफ्रो ब एरियाव नायनाय आफ्रोबो जों सालायनानै नांनाय कायसा गारि वसि मालखुं वसि अमा हाई टेक्नोलॉजी नि ट्रीटमेंट ngoi मानाय अमो जों कल्पना फनो खायमेया दिनै जों बोबाग्रानि साकथारमुंबाय अ जागा नखा इंखे आं कयनायनि मुसुगो जों ओ फेसिलिटी न पूरा नानानि बागै रनानि बागै जोंनि लोकरकनो जों सालायनानै नांनाय आं तैको गोबां साया जतन हामबाय खुलुमबाय के बेलायनो हामबाय आं पहिलानो नरकनो खुलुम मास कांगिया फारो खुलुमखा जतननो माननीय CM पूर्णचंद्र जमातिया ब्रुंगनांग CK जमातिया CEO TTAADC all the EMs Sohel MDCs Devajit Ravindra Babu Umashankar Ganesh Chairman EM Kamal Kolai Chairman Ranjit Dev Burma the entire team of Apollo
Dr. Premanand, Janvi and Dr. Karan. यहाँ में प्रेस क्लब से प्रणब बाबू, थैंक यू फॉर कमिंग. और यहाँ में सामने में डिग्निटरीज हैं, सबको मैं पहचानता हूँ. प्रेस, पीपल ऑफ द प्रेस, अगरतला से जो आए हैं, भाई काहम, लमसोगो, वेलकम. कभी कभी एडीसी में भी आकर आपने देखा है. किसी ने कहा था पहले कि बुबागरा या प्रद्योत, आप एडीसी में प्रोग्राम करने से अगरतला के प्रेस को क्यों नहीं बुलाते हो? तो मुझे लगा कि ये ठीक, ये आपका सजेशन एकदम ठीक है. तो मैंने इसके लिए खुद बहुत लोगों को फ़ोन करके, प्रणब बाबू को फ़ोन करके, यहाँ में आप लोग हैं उनको फ़ोन करके मैंने निमंत्रण किया है. आप आए हैं. मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में एक हेल्थ रेवोल्यूशन आए. और ये स्वास्थ्य एक चीज़ ऐसा है जो किसी का जाति को नहीं देखता है, किसी का धर्म को नहीं देखता है. और हेल्थ एक ऐसा चीज़ है जो सबको इफ़ेक्ट करता है. जब कोविड हुआ तो किसी ने नहीं देखा कि कौन क्या है, हम सबको लगा. और त्रिपुरा को अगर आगे बढ़ना है तो हमें हेल्थ केयर, अपने लोगों को, जब मैं अपने लोगों के बारे में बात करता हूँ, मैं पूरा त्रिपुरा के बारे में बात करता हूँ. हम त्रिपुरा के लोगों को हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर हमें चाहिए. और इसके लिए जब हम लोग एडीसी में पावर में आए थे तो मैंने उस समय, अब तो मैं ओपनली बोल सकता हूँ, मैंने उस समय अपने मुख्यमंत्री जी से बात किया था और मैंने कहा था कि मैं अपोलो को एडीसी लाना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा था कि वो तो अगरतला में भी नहीं आए हैं, एडीसी कैसे आएंगे? मुझे नहीं लगता होगा महाराज, आप कोशिश कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा. मैंने इसको चैलेंज जैसे नहीं लिया, मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ. और कोशिश कर करके हमारे यहाँ में भी बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया. लेकिन सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम को अगर आप पुश नहीं करोगे, अगर आप किसी को धक्का मार के नहीं बोलोगे करो करो, तो सिस्टम खुद ब खुद काम नहीं करता. मैंने बहुत कोशिश किया है और मुझे आज आपको बोलने में आनंद भी लगता है कि अपोलो एडीसी में है, अपोलो त्रिपुरा में है. लेकिन ये आ गया, हम लोग ने ताली मार दिया, ख़त्म नहीं. मैंने देखा है कि हमारा आज कोई भी त्रिपुरा का लोग हो, बाहर से हो या शहर से हो, अगर उनको ट्रीटमेंट चाहिए तो वेलोर जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाना पड़ता है. मैं चाहता हूं कि खुमुलुंग में ही हम एक ऐसा सेटअप बना दे, 5 साल हो, 10 साल हो, कि कोई भी त्रिपुरा के आदमी को या महिला को या यूथ को बाहर जाने का दरकार नहीं होना चाहिए. उनको त्रिपुरा में ही उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए. और ट्रीटमेंट वैसा हो जो क्वालिटी हो, लेकिन आपके जेब में खर्चा इतना नहीं. सामने बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भी लोग चेन्नई पहुंच जाते हैं, हैदराबाद पहुंच जाते हैं, वेलोर पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं. आप यहाँ आकर करो. जब यहाँ में कोई आएगा, ट्रीटमेंट कराएगा, तो यहाँ का इकॉनमी बढ़ेगा. क्योंकि जब एक पेशेंट आता है तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं आता है, उनको यहाँ में 10 दिन 15 दिन बिताना पड़ता है. और अगर कोई 10-15 दिन यहाँ रहेगा तो वो पैसा भी खर्च करेगा और वो पैसा हमारे ही लोगों के पास जाएगा. आज तक हमने पैसा कमाया है और हमने जाकर बाहर में पैसा खर्च किया है. हम चाहता है कि बाहर के लोग आकर खुमलुंग में पैसा खर्च करें और ये पैसा आपके पास जाए. इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है, अगर सिस्टम को बदलना है, तो पैसा आपके पास आना पड़ेगा, हेल्थ आपके पास आना पड़ेगा, एजुकेशन आपके पास आना पड़ेगा.
मैं आपको एक अंदर का बात बोलता हूं, हेल्थ केयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पिताजी 2006 में, मुझे अभी भी याद है, उनके चेस्ट में थोड़ा सा दर्द हुआ। सवेरे 4 बजा था। उन्होंने राजमाता को, उस समय महारानी को कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। मेरा पिताजी। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, दवाई ले लो, सो जाओ, पानी पी लो। 8 बजे उन्होंने कहा अभी भी 4 घंटा हो गया है, कहा अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। मैं जुबराज से बात करना चाहता हूँ, मुझसे। मैं शिलोंग में था, मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा बाबा सब ठीक है? बोला नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम है। बोला कि बाबा आपको कुछ नहीं होगा? बोला नहीं, हम ठीक, आप आ जाओ। महाराजा को डॉक्टर के पास, डॉक्टर आया 10 बजे, हॉस्पिटल ले गया 12 बजे। 8 घंटा डिले हुआ। मैंने अपने बाबा को और कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, वो फ़ोन कॉल ही लास्ट टाइम था। ये डिले हुआ, जो भी रीज़न के लिए हुआ, इसके लिए आज मेरा पिताजी मेरे संग नहीं है। मैंने कभी भी उनके संग और बात नहीं की। ये मेरे अंदर आज भी एक छोटा सा एक दर्द है कि मैंने अपने बाबा को उनके लास्ट मोमेंट में मैंने उनका हाथ नहीं पकड़ा, उनसे बात नहीं किया। मैंने अपने पिताजी को, मुझे रहना चाहिए था उससे, लेकिन वो 8 घंटा तक कंप्लेन करते रहा कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम था और ट्रीटमेंट नहीं हुई। जब एक 60 साल का एक महिला, जो अभी डॉक्टर प्रेमानंद ने कहा है, खेरिंगबार आता है, हार्ट रेट 117 है। उस समय अगर ये अपोलो आने से पहले होता तो उनको अगरतला जाना पड़ता और डिले होता, और उस डिले में क्या भी हो सकता कोई बोल नहीं सकता। लेकिन राइट टाइम में डॉक्टर खेरिंगबार में उनका मुलाकात हुआ, उनको स्टेबलाइज किया गया। आज वो 60 साल का औरत अपने परिवार के संग है, ठीक है। एक 104 साल का व्यक्ति खुद खेरिंगबार जाता है ट्रीटमेंट के लिए। क्या मैसेज है कि हम लोग विश्वास करता है कि यहाँ में खुमलुंग में भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट बन सकता है। एक विश्वास है। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैंने अपना पिताजी के बारे क्यों बात किया, महाराजा के बारे क्यों बात की? महाराजा वीर विक्रम भी 1947 में उनका देहांत हुआ। जब वो उनका देहांत हुआ, ट्रीटमेंट करने वाला कोई नहीं था। जब तक डॉक्टर आया, महाराजा वीर विक्रम नहीं रहा। मेरा पिताजी को देखिए, अगर राइट टाइम में ट्रीटमेंट मिलता तो आज मेरा पिताजी जिंदा रहे। तो आज अगर मेरे अंदर में एक सेंटिमेंट है कि अगर मैं आज एक भी व्यक्ति को बचा सकता हूं तो वो आशीर्वाद है ऊपर से हमको, कि हम लोग ने एक इंसान को बचाया जब वो उसका सिचुएशन सीरियस था। ये पर्सनल चीज है। सेकंड चीज, यहां में मेरे YTF के मेंबर्स लोग हैं, हमेशा बोलते हैं बुबागरा ब्लड डोनेशन कैंप करो, ब्लड डोनेशन कैंप करो। तो मैंने डॉक्टर करण अपोलो के हैं यहां से, जिसने बात की, मैंने कहा कि आप लोग ही यहां आकर हमारे लिए ब्लड बैंक बना दो, कॉस्टिंग हम लोग देख लेंगे। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन ही हमको आश्वासन दे रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक खेरिंगबार में, खुमुलुंग में बना के रखेंगे। क्या है ये ब्लड बैंक? अगर आज किसी का सर्जरी है तो आपका खून का दरकार है। अगर कोई बीमार है और उसका खून का ब्लड डोनेशन दरकार है
एक्सीडेंट हुआ है, खून का दरकार है। अगर कोई बच्चा डिलीवरी कर रहा है, उसमें ऑपरेशन हो रहा है, उसमें कॉम्प्लिकेशन आता है, खून का दरकार है। लेकिन मैंने एक चीज़ और कहा अपोलो को कि सिर्फ ब्लड बैंक से नहीं होगा। आज त्रिपुरा में ड्रग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? यहाँ में बहुत बुमाए लोग है कि नहीं? और ये ड्रग से क्या बढ़ता है? एड्स, HIV। तो हमने बोला है कि इस ब्लड बैंक में HIV टेस्टिंग तो होना ही पड़ेगा। HIV टेस्टिंग भी होगा, क्योंकि अगर हमने आज ये ड्रग्स का नशा को बंद नहीं किया, HIV को हमने कंट्रोल नहीं किया, तो हमारा सोसाइटी, आप जितना भी आयुक लोकथोंग बोल दो, हम लोग का सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं आपको यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि आने वाले थोड़े दिन में, मैं ज़्यादा दिन इंतज़ार करना नहीं चाहता हूँ। कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं। कल मैं रहूँ या ना रहूँ, कल पुन्नो रहे या ना रहे, सोहेल रहे या ना रहे, लेकिन तिपरासा को खून के कमी के लिए कष्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने अनाउंस कर दिया है कि यहाँ में ब्लड बैंक होगा विथ वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक। ऐसा ही वर्ल्ड ब्लड बैंक नहीं, आगे में MMU यूनिट है, मोबाइल मेडिकल यूनिट। क्या है ये मोबाइल मेडिकल यूनिट? आज अगर किसी को ट्रीटमेंट करना है, छाती में दर्द हो, अगर किसी का आंख का प्रॉब्लम है, किसी को एक्सरे कराना हो, किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो, बुखार हो, आपको अपना गांव से चल के या गाड़ी लेकर आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या फिर आपको अगरतला आना पड़ता है। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट बाहर में है, आप लोग आके देखिए। इसमें डॉक्टर रहेगा, इसमें मशीन रहेगा, इसमें ECG मशीन रहेगा, इसमें टेलीमेडिसिन रहेगा, इसमें अगर आपको कोई भी टेस्ट कराना वो रहेगा। और ये मोबाइल मेडिकल यूनिट आपके पास आएगा, आपको हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा, ये आपके पास आएगा। सब लोगों ने बोला था ये होबे ना, ये होगा नहीं, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमने किया। पैसा कहां से आ रहा है? मैंने ONGC से बात किया, मैंने कहा कि मुझे रंग नहीं चाहिए, मुझे रुपया नहीं चाहिए, आप एम्बुलेंस दे दो। मैंने अपोलो को बोला कि ये है एम्बुलेंस, आप ये बनाओ, बाकी का खर्च हम देते हैं। हर समय डोनेशन मांगने से ज्यादा अच्छा है कि अपना दोफा को कुछ दो। हर समय कंस्ट्रक्शन करने से ज्यादा अच्छा है कि आपके पास सुविधा पहुंचे। आने वाले थोड़े दिन में यहाँ में हमारे CM है, CEO है, यहाँ में हम लोग एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट हॉस्पिटल भी बनाएंगे। और ये वर्ल्ड क्लास स्मार्ट हॉस्पिटल आप सबके लिए, पूरा त्रिपुरा के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल आज बहुत लोगों के लिए धंधा बन गया। मैं चाहता हूं कि पहले हमारा ड्यूटी है कि आपको आपका पैसा भी बचे और आपको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट भी मिले। इसके लिए खुमुलुंग में सामने भी एक स्मार्ट हॉस्पिटल, खेरिंगबार तो है और एक हॉस्पिटल बनने वाला है। मैं पॉलिटिक्स का बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। सब लोग जिसने बोला है कि आंचलिक पार्टी कुछ नहीं कर सकता है, डेवलपमेंट सिर्फ नेशनल पार्टी कर सकता है। डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट का सिर्फ मतलब है कि ब्रिज बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, या डेवलपमेंट का मतलब है कि स्कूल दो, शिक्षा दो। स्कूल में अगर बिल्डिंग है तो टीचर का अच्छा शिक्षा दो, अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के अंदर सुविधा दो। अगर आपने बिजली का खंबा लगाया है तो बिजली का खंबा लगाने से बिजली नहीं आता है, बिजली को आपके घर में बल्ब पहुंचना चाहिए। तो मेरा जो सोच है वो
डायरेक्ट पब्लिक के पास सुविधा जाना चाहिए। पॉलिटिशियन और कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने से कुछ नहीं मिलेगा। यहां में मीडिया लोग आया है, मैं मीडिया को भी अच्छे तरीके से, I want to thank all of you all. You all have come from Agartala. I have seen respected office bearers of the Agartala press coming here. मैं चाहता हूं और मैं अपोलो को भी ये बात बोलना चाहता हूं कि क्योंकि the media is so dependent today on government funding that only अगर गवर्नमेंट कुछ करता है तो मीडिया हाईलाइट करता है। अपोलो is a very big company, institution. It's not even a company, it's an institution. आपका जो भी प्रोग्राम्स है, आपका जो भी आने वाले दिन में आपका प्लानिंग है, वो भी आप थ्रू प्रेस हाईलाइट कीजिए, क्योंकि अगर प्रेस को जानकारी होगा तो पब्लिक को जानकारी होगा। ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखकर मत जाइए। माय CEO इज हियर। हम लोग बोलते हैं कि मीडिया खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन हम क्या करते हैं डेमोक्रेसी और मीडिया को हेल्प करने के लिए? तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ हम लोग पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को प्रचार करते हैं, नहीं, बहुत जो हमारा जो स्कीम्स निकला है वो भी मीडिया के पास जाना चाहिए। सीके बाबू, जब मीडिया को ये सब बात मालूम होगा तभी ये बात पब्लिक के पास जाएगा। तो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू टेलीवाइज्ड मीडिया, डिजिटल मीडिया, आई थिंक दैट अपोलो शुड ऑल्सो कंसिडर रीचिंग आउट, डॉक्टर साहब, and from the ADC also we should also come up with a policy of at least letting at least when it comes to health, I am not saying you do it for every department, but जब it comes to health we should have a policy of letting the media and the local press know हम लोग क्या कर रहे हैं। लास्ट में आप सबको मैंने बोला था कि होगा कुछ ना कुछ तो हम लोग करेंगे, हुआ है कि नहीं? हाँ कि नहीं? बुरी लोग से एक आवाज नहीं सुनाई दिया, हाँ कि नहीं? नहीं सुनाई पड़ रहा है, चाकू ही नहीं खाया आपने, हाँ कि नहीं? अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे सपोर्ट करो। वोट दे के सपोर्ट नहीं, लेकिन अगर आपका गांव में कोई बीमार है तो उसका हाथ पकड़ के आप हॉस्पिटल में लाओ। अगर आपके घर में कोई बीमार है या कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसको समझाओ, काउंसलिंग दो। और मैं आपको और एक चीज अनाउंस करने वाला हूं कि इसी अगले 3 या 4 महीने में हम लोग यहां में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने वाले हैं, और ये हमारा एक वादा था, ये भी पूरा हो रहा है। फंड भी आ चुका है, हमने बात भी किया है, और बिल्डिंग भी आइडेंटिफाई हो गया है। कोई नया बिल्डिंग बनाने का दरकार नहीं है, जो पुराना बिल्डिंग था उसी को मरम्मत करके अच्छा बिल्डिंग है, अच्छे तरीके से हम लोग ये पैसा सीमेंट, बालू और रॉड में नहीं खर्चा करेंगे। ये पैसा हम आपके बच्चे को ट्रीटमेंट करने के लिए, दवाई देने के लिए, डॉक्टर को नौकरी देने के लिए, और जो ड्रग एडिक्ट है उनको हेल्प करने के लिए हम लोग खर्च करेंगे। ये हम आपको अनाउंस कर रहे हैं। और अपोलो यहाँ में आया है। मीडिया को मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, एक ऐप है, इस ऐप से आप देख सकते हैं कि कितना मरीज का ट्रीटमेंट हुआ है, ये लाइव अपडेट होता है। तो आप एक्चुअली देख सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि रोज कितने मरीज आए, कितना महिला था, कितना पुरुष था, क्या प्रॉब्लम था, क्या टेली इमरजेंसी था, क्या लैबोरेटरी का प्रॉब्लम था, और उनका फीडबैक भी क्या है, अच्छा था, खराब था, बहुत अच्छा था, सब लाइव ऐप में है। मैं आपको लिंक शेयर भी कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप भी, मीडिया हैज़ अ बिग रोल टू प्ले, आप लोगों का सोसाइटी हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। आप मुझे सिर्फ बैक कीजिए
मैं त्रिपुरा में एक ऐसा रेवोल्यूशन लाना चाहता हूं कि बाहर के लोग भी यहां आकर अपना ट्रीटमेंट ले, और आज के बाद हम लोगों का एक ऐसा हॉस्पिटल्स यहाँ में आए कि हमको बाहर नहीं जाना पड़े। बाहर के लोग, शिलोंग के लोग, नागालैंड के लोग, मिजोरम के लोग, आसाम के लोग भी यहाँ आकर अपना ट्रीटमेंट कराए। ये होगा तो सबका फायदा भी होगा और सबका बेनिफिट भी होगा। थैंक यू वंस अगेन टू डॉक्टर साहब। आपने और एक अनाउंस किया है कि यहाँ में हम लोग फ्री आई कैंप्स करेंगे इस मोबाइल हॉस्पिटल से, और इस हॉस्पिटल से सबका आँख का चेकअप भी होगा, और जो चश्मा दिया जाएगा अपोलो ही देगा, उसका पूरा खर्चा TTAADC खुद देगा। और आप सबको, अभी तक तो हमने शायद 5 या 10 हज़ार चश्मा का ऑर्डर किया है, थोड़े दिन के बाद मुझे भी शायद चश्मा का दरकार हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने सरकार के ऊपर, अपने तिप्रासा के ऊपर, अपना त्रिपुरा के ऊपर, अपने राज्य के ऊपर थोड़ा सा विश्वास करें। मैं भी डेवलपमेंट चाहता हूं, मैं भी एक प्रोग्रेसिव त्रिपुरा दिखना चाहता हूं, और कोई भी सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस until our health, our education and our entire system is not in the right order. बेलाई बेलाई नो हम भाई, I love all of you all। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, और जो मेरे पिताजी के संग हुआ मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके परिवार में भी हो। I love you। और आज अगर महाराजा ऊपर से मुझे नीचे देख रहा है तो उनको भी अच्छा लगेगा कि उनका बेटा ने एक चीज़ तो इस हेल्थ में कुछ ठीक किया। ये मेरा मिशन था, ये मेरा पर्सनल वो था। मैं चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़े, खुश रहिए और सबको प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाइए। बेलाई बेलाई नो हाम बाय खुलुंखा। थैंक यू, धन्यवाद। সবাইকে নমস্কার। আজকে দ্বিতীয় ধাপে আমাদের খেরেংবার হসপিটাল তথা হেলথ ডিপার্টমেন্ট TTADCর একটা নতুন পালক, দ্বিতীয় পালক। এই অনুষ্ঠানের আমাদের হিজ হাইনেস মহারাজা উপস্থিত আছেন, আমাদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, কার্যনির্বাহী সদস্য শ্রী সোহেল দেববর্মা, উপস্থিত আছেন আমাদের MDCগণ, উপস্থিত আছেন আমাদের CEO, উপস্থিত আছেন অ্যাপোলো থেকে ম্যানেজমেন্ট টিম থেকে আগত ডক্টর জাহ্নবী দাস, ডক্টর করণ ঠাকুর, ডক্টর মিস্টার প্রেমানন্দ, আর আমাদের ওয়েস্ট জোনালের চেয়ারম্যান রঞ্জিত দেববর্মা মহোদয়, আর মিডিয়া ফ্রেন্ডস এবং আমাদের আগরতলা প্রেস ক্লাবের আমাদের মাননীয় সম্পাদক প্রণব সরকার মহোদয়, এবং আপনারা মিডিয়ার বন্ধুরা এখানে এসছেন সুদূর আগরতলা থেকে। আপনাদের জাস্ট কিছু আমি ইনফরমেশন শেয়ার করতে চাই। আমরা ত্রিপুরা মথা এডিসিতে ক্ষমতা দখলের পর 1 বছর হতে চলেছে, হয়ে গেছে, 1 বছরের ঊর্ধ্বে হয়ে গেছে। আমরা হেলথ সেক্টরে, হেলথ ডিপার্টমেন্টে যে কাজগুলি আমরা করেছি, তাতে আজকের যে কাজের সাথে আপনারা যদি তাল মিলান তাহলে কি হারে আমরা উন্নয়নের কাজ করছি সেটা আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন। আমরা আসার পর এই এডিসি থেকে প্রত্যেক বছরে মাত্র 4টা হেলথ ক্যাম্প হতো, অনলি 4 হেলথ ক্যাম্প হতো। আমরা ত্রিপুরা মথা এখানে আসার পর আমি ব্যক্তিগত প্রত্যেকটা হেলথ ক্যাম্প গিয়ে 94টা হেলথ ক্যাম্প করেছি 1 বছরে। ডিফারেন্সটা দেখুন, 4টা হেলথ ক্যাম্প আর 94টা হেলথ ক্যাম্প। ত্রিপুরার রাজ্যে জিবি এবং IGM বাদে সবচেয়ে চাইল্ড ডেলিভারি হয় আমাদের খেরেংবার হসপিটালে আমরা আসার পর। 2, আমরা আসার পর
এই খেরেংবার হসপিটালে প্রথম কোনো রাজ্যের সরকারি হসপিটালে কি বলে এই যে গোল ব্লাডার স্টোনের যে অপারেশন হয়, লেপ্রোস্কোপি অপারেশন আমরা এখানেই খেরেংবার হসপিটালে আমরা কন্ডাক্ট করেছি। প্রত্যেক মাসে আমরা 25 জন 26 জন আমাদের গরিব মায়ের বোনেদেরকে আমরা যারা গাইনি টিউমারের প্রবলেম, সার্জিক্যাল প্রবলেম, 25 থেকে 30 জনকে আমরা ফ্রি সার্জিক্যাল ক্যাম্প করে ওনাদেরকে সুস্থ করে বাড়িতে পাঠিয়ে দিই। গতবারও আমরা 21 জনকে আমরা ফ্রি সার্জিক্যাল ক্যাম্প করে তাদেরকে আমরা পরিষেবা দিয়ে বাড়িতে সবাই সুস্থ আছেন। টেলিমেডিসিন গত 3 সপ্তাহ আগে আমরা টেলিমেডিসিন এবং টেলি ইমার্জেন্সি চালু করেছি। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, প্রত্যেক দিনে এতই ভিড় হচ্ছে এখানে আমাদের খেরেংবার হসপিটালে। আমরা 4 দিন পর 5 দিন পর স্লট দিতে হচ্ছে। আমরা প্রত্যেক দিনে 20 জন 14 জন 15 জনের বেশি আমরা রুগী দেখতে পারি না, কিন্তু প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট থেকে আপনারা চিন্তা করুন, সামনো, গোবিন্দবাড়ি, থালসরা, কাঞ্চনপুর, করবুক, খোয়াই, সব জায়গা থেকে ওখানকার হসপিটাল ছেড়ে আমাদের এখানে ডাইরেক্ট চলে আসে খুমুলুঙের খেরেংবার হসপিটালে টেলিমেডিসিনে। তাতে এখন আমরা মানে হিউজ একটা মানুষের মধ্যে একটা কি বলবো একটা আন্দোলন হয়ে গেছে যে আমরা ওইখানেই দেখব, টেলিমেডিসিনে আমরা দেখব, মহারাজার হসপিটালে গিয়ে আমরা আমাদের চিকিৎসা করাবো। এই আমাদের টিপ্রাসের মধ্যে ট্রেন্ড শুরু হয়ে গেছে। কিছুদিনের মধ্যে আমরা বেডও দিতে পারবো। আমাদের এখানে এক্সিস্টিং যেটা বেড রয়েছে অনলি 50-খানা বেড। এই বেডে আপনারা দেখতে পারবেন আমরা কিভাবে পরিষেবা। আমি সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আবেদন করব, আপনারা এই প্রোগ্রামের পর ফিতা কেটে ইনগুরেশনের পর আমাদের টেলিমেডিসিনতে কীভাবে টেলিমেডিসিন হয়, টেলি ইমার্জেন্সি কীভাবে পরিষেবা হয় আপনারা একটু ভিজিট করে দেখুন। তো প্রত্যেক দিনে মানে আমাদের 4-5 দিন আগে বুকিং হচ্ছে। এখন আজকে আমরা রুগী দেখাতে পারছি না, কারণ প্রচণ্ড ভিড় লেগে গেছে। এখন এইভাবে আমাদের পরিষেবা শুরু হয়ে গেছে। এখন এই মোবাইল হসপিটাল ভ্যান, যেটা মোবাইল হসপিটাল ইউনিট, এটা যদি আজকে থেকে শুরু আমি টার্গেট দিয়েছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন গত 1 মাস আগে মানিকপুরে 2 জন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে একই পরিবারের 2 জন শিশু মারা গেছে এবং ডাক্তারের উপরে আক্রমণ হয়েছে। যেদিন আক্রমণ হয় সেদিনই আমি দূরে রাত্রে 9টায় ওখানে পৌঁছি। ঘটনাতে কি আমি যাচাই করি এবং জানতে চেষ্টা করি। প্রত্যন্ত এলাকাতে আপনাদের জানার জন্য বলছি, এডিসি এলাকাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ভালো না। এখন রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা নাই বললেই চলে। এডিসি এলাকাতে আমাদের এডিসির আন্ডারে মাত্র শুধু খেরেংবার হসপিটাল আর তুইকর্মতে একটা হসপিটাল আছে প্রাইমারি, আর একটা শিকারি বাড়িতে আমাদের ডিসপেন্সারির মতো ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে আমরা পরিষেবাও চালাতে পারছি না। আমরা রাজ্য সরকারকে বলেছি, আপনারা যদি চালাতে না পারেন প্রাইমারি হেলথ সেন্টারগুলো আমাদেরকে দিন, স্টাফ সহ এডিসি এলাকার সমস্ত প্রাইমারি সেন্টারগুলি আমাদেরকে দিন, আমরা চালাবো, আমরা চেষ্টা করব। বান্দারিমা, যেখানে প্রত্যন্ত এলাকা মিজোরামের বর্ডার, ওখানে সুন্দর করে একটা এস্টাবলিশমেন্ট আছে, একটা প্রাইমারি সেন্টার বানিয়ে রেখেছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে। কোয়ার্টার আছে, কিন্তু কোনো ওখানে কোনো ডাক্তার নেই, এখনও চালু হয়নি। বিল্ডিংগুলো এখনও অপচয় নষ্ট হচ্ছে। উত্তর মহারানীপুর এরকম প্রচুর বিল্ডিং আছে, রাজ্য সরকার এখনও স্টাফ দিতে পারেনি, এখনও উদ্বোধন করতে পারেনি। বিভিন্ন হেলথ সাব সেন্টারে, প্রাইমারি সেন্টারে এখন রাজ্য সরকার স্টাফ দিতে পারছে না। স্টাফ নেই, নার্স নেই, প্যারামেডিক্স নেই, ডক্টরস নেই। ফলে রাজ্যে কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা কিন্তু মুখ থুবড়ে। এই জায়গাতে আমরা চেষ্টা করছি রাজ্য সরকারের সাথে। আমরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও আমরা 2-3 বার আমরা দেখা করেছি এবং বলেছি, আমি মহারাজার সাথে গিয়ে আমি ডাইরেক্টলি ওনাকেও বলেছি যে এই প্রাইমারি সেন্টারগুলি আমাদের হাতে দিন, আমরা চেষ্টা করব চালাতে।
তো হ্যাঁ, রাজ্য সরকার আমাদেরকে 30 কোটি টাকাও দিয়েছে, যেটা আমরা খেরেংবার হসপিটালকে এখন 50 বেড যেটা আছে ওইটাকে আমরা 150 বেড 150 বেড আমরা তৈরি করব। অলরেডি ডিপিআর কমপ্লিট, সমস্ত কমপ্লিট হয়ে গেছে, জাস্ট আমরা টেন্ডার ফ্লোরিংয়ের জন্য অপেক্ষা করছি। বাই ইলেকশনের এখন নির্গন্ত হয়ে গেছে, আপনারা জানেন কোড অফ কন্ডাক্টের জন্য আমাদের এটা থেমে গেছে। আর যা আমাদের এখানে দরকার, এরই সাথে আজকে ঘোষণা হয়ে গেল ব্লাড ব্যাংক হবে এখানে, ড্রাগ রিহ্যাব সেন্টার হবে কিছুদিনের মধ্যে, 2-3 মাসের মধ্যে আমরা ড্রাগ রিহ্যাব সেন্টারও শুরু করব। ব্লাড ব্যাংক তো হবেই, ইভেন প্রত্যেক মাসে আমরা যে সার্জিক্যাল ক্যাম্প হচ্ছে এখানে গ্রামের মায়েরা বোনেরা, আমাদের এখানে এখন 100 জন লিস্ট পড়ে গেছে। আগামী এই মাসে আমরা 21 জন বা 20 জনকে আমরা অপারেশন করব, কিন্তু আমাদের কাছে লিস্ট এসে পৌঁছেছে 100-এর বেশি। কিন্তু আমরা প্রত্যেক মাসে 20 জন করে টার্গেট দিয়েছিলাম, কিন্তু ছোট্ট একটা 50 শয্যা একটা বেডে আমাদের সংকীর্ণ একটা পরিষেবা একটা অবস্থাতে আমাদের ফান্ড নেই, আমাদের বাজেট নেই, আমাদের টাকা নেই, আমাদের লোক নেই, তবু আমরা চেষ্টা করছি হেলথ যেন 1 নম্বরে, মহারাজা 1 নম্বর যেহেতু হেলথকে করেছে, এই হেলথকে কীভাবে মানুষের সেবাতে, মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে কীভাবে ওয়ার্ল্ড ক্লাস অ্যাপোলোর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলে পায়ে পা মিলিয়ে আমরা হেঁটে যেন রাজ্যবাসীকে ওয়ার্ল্ড ক্লাস একটা হেলথ ফেসিলিটি দিতে পারে, ওইটাই চেষ্টা করছি। আপনাদের সহযোগিতা দরকার, সবার সহযোগিতা দরকার, তাহলে আর বেশি দূর নয়, আমাদের এই এডিসি এলাকাতেও আমাদের মায়েদের বোনেদের সমস্ত আমাদের জনগণদের আমরা স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারবো, এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে নমস্কার এবং খুলুমকা। Sini Bobagurani Wansuk Mumbai je mobile medical unit sini hasteo tabu sengi rani je panda o phai manda phai number ang sini Bobagrano bela bela ke khakam mario hoyto tinini osal sini edisini bagai ulo taibo kusung ngisung osal no mujuma khayana karon moti hai মোবাইল মেডিকেল ইউনিট गोबांमा जागा गैयाखौ खूब कम जागायावनो स्टार्ट खायजाका नेशनल हेल्थ मिशन अफ इंडिया बरक ताबुक प्रजेक्टनो तुई विभिन्न राज्यों सामुंखाय दङ आबोनि बिसिं सिन मखाय जोंनि बबाग्रानि वानसुगुंवाय NHM रिया सानि न जोंर जेंनि रिमाखा आबोनि बागै जों बबाग्रानो बेले बेले जतन याफा खरमना निंखु তাই সিনিয়র প্রোগ্রামও সিনি এডিসিনি বড় গোনাं সিএম বফাই মানজাগै প্রোগ্রাম ন মোসাংরিরমান বাগै আংবনব খাকা হাবিয়া ফার তাই সিনি যত এক্সিকিউটিভ মেম্বার তাই যত এমডিসি বরং আং বেলে বেলে খাকা হাম তিনিও প্রোগ্রাম মানজাং বাগै আই স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু Apello Group that we have arrived from such a far place to witness this program. We are really thankful to you all. তাই যত অকরা চাকরা তা খুব যত তিনি প্রোগ্রাম নমাজা বাকি আং বেলাকে যত নানি খাকা হাম তিনি হেলথ ডিপার্টমেন্ট নিয়ে তাই আং অর প্রোগ্রামও বিভিন্ন বরক যে এঙ্গেজ নাই স্পেশালি সিনি খেরেংবার হসপিটালনি হেলথ স্টাফ রক বরং বেলাকে খাকা হাম মারিব তাই স্পেশালি ফ্রম প্রেস অলসো আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিই আপনারা আজকে এসেছেন এই প্রোগ্রামটা দেখার জন্য তাই আজকে সাইন যতন খুলমুই তিনিও প্রোগ্রাম অরণ পাইরে যাখা হামবাই distance and affordable healthcare.